Good morning to everyone. Hindustan Private Limited had issued 5,012% debentures of rupees 100 each, redeemable on 31st December 2013 at par. So there are five. Hindustan Private Limited has 5,012% debentures which has to be redeemable on 31/12/2013 at par. So the date of redemption is given 31/12/2013 and the redemption is at par. The company offered three options to the debenture holders. Firstly, 14% preference shares of rupees 10 each at rupees 12. Second option, 15% debentures of rupees 100 each at par. And the third option is redemption in cash. So there are three options that can be given to the debenture holders. They can accept any of the one. So first option is to issue them 14% preference shares of rupees 10 each at rupees 12. And the next option is to issue 15% debentures of rupees 100 each at par. 15% debenture of rupees 100 each at par, and the last option is to pay cash. Now the options were accepted as follows. तो पहला वाला option was accepted by holders of 1500 debentures. Option 2 by holders of 1500 debentures, and option 3 by holders of 2000 debentures. 1500 plus 1500 plus 2000 is equal to 5000 shares. So सबने अपना अपना ऑप्शन ले लिया. 1500 डिबेंचर से फर्स्ट ऑप्शन, बाकी 1500 ने सेकेंड ऑप्शन और लास्ट का 2000 ने लास्ट ऑप्शन कैश का. The redemption was carried out by the company, passed journal entries in the books of Hindustan Private Limited without narration. So no need to write narration. Company decided to use the minimum amount of profits required by law. So as per law, how much is the minimum amount of profit? It is 25% of the face value. It is 25% of the face value. So what we will do, 25% of the face value redeemable at paid by cash. So here let us start. Journal entries in the books of Hindustan Private Limited is the name of the company. So let us prepare the column 1, 2, 3, 4. Serial number. Let us adjust the amount columns. Amount columns. Okay. So serial number, or we can write date, and we have only one date given. So same date we will have to put every time. That is 31/12/2013 for all the entries. That also we can do. Particulars, rupees. So first entry is due entry. So किसको पे करना है? 12% डिबेंचर्स इज लाइबिलिटी, बट यहाँ पे कम होगा तो हमने डेबिट में लिखा है रिडेम्पशन इज एट पार. तो किसको इतना पैसा मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को. हाउ मच? 5000
पैसा यहाँ पे कैश ही मिलेगा ऐसा नहीं है। इस रिडेम्पशन का 3 वेज है। तो रिडेम्पशन में देयर आर 5000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100। तो 5000 इंटू 100 कितना ड्यू है रिडेम्पशन में? इट इज कमिंग टू 5 lakhs। 5 lakhs. So narration, they have not asked being amount due on redemption. ये नहीं पूछा है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज दे हैव टोल्ड नो नरेशन. So this is the first entry. The next entry हमें 3 ऑप्शन है. पेमेंट, the next after due the next entry should be payment. पहला हम ड्यू का एंट्री पास करते हैं, फिर हम पेमेंट का एंट्री पास करते हैं. तो पेमेंट में यहाँ पे 3 ऑप्शन है. जो 5000 डिबेंचर्स है सब ने, अब ये 3 ऑप्शन था उनके पास, 5000 डिबेंचर्स के पास 3 ऑप्शन था. तो पहला ऑप्शन 1500 डिबेंचर्स ने पहला ऑप्शन लिया है. सो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिल रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में जब भी पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर डेबिट में चला जाएगा, बिकॉज डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल जाएगा. व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? पैसा ही नहीं, दे विल गेट देयर क्लेम, बिकॉज यहाँ पे कैश भी है, डिबेंचर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है. सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. व्हाट विल द फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से क्या मिलने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से 14% प्रेफरेंस शेयर मिलने वाला है. सो क्या क्रिएट होगा? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. और क्या है यहाँ पे? 10 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर 12 रुपीज़ में मिलने वाला है. तो 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम. सी यहाँ पे 14% डिबेंचर से सब 10 रुपीज़, बट इज बीइंग इशूड एट 12. मीन्स यहाँ पे जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज प्रीमियम. और प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बताते हैं. तो पहले तो फाइंड करते हैं ऑप्शन 1 में क्या मिलने वाला है. ऑप्शन 1 में कितने लोगों ने ये 1500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. 1500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. क्या ये दिस इज हाउ मच? 1,50,000 डिवाइड बाई 12 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाई 10 + 2, 12 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर. तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जरा देखो. नंबर ऑफ शेयर्स कितना होता है? हाउ मच विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स? 1,50,000 divide by 12 means we get 12,000. We get 12,500. 14% preference share capital या preference shares of ₹10 issued at ₹12. 10 का शेयर 12 में दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पता चल गया. तो 12,500 इंटू कितना है एक शेयर? एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो ये आ जाएगा. और दूसरा 12,500 शेयर्स को 2 रुपीज़ का प्रीमियम देने वाले. सो ये कैसे आएगा? कितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया? 1500 इंटू 100 to this first option. So this becomes 1,50,000
this becomes 1,25,000 and last का 25,000. तो being number of debentures opted for, being number of debentures opted for option 1, opted for option 1. ये तो नंबर ऑफ के बदले में हम 1500 डिबेंचर्स भी लिख सकते थे, बिकॉज 1500 डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 1. नाउ वी कम टू द सेकेंड ऑप्शन. The second option is the third entry. फिर से कितने डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन लिया? 1500 डिबेंचर्स ने ये ऑप्शन लिया. ऑप्शन 2 जिसमें 15% डिबेंचर्स मिलने वाला है 100 रुपीज का. सो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स फिर से कैंसिल हो जाएगा. तो क्रेडिट का ऑपोजिट, दिस विल कम इन डेबिट. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट. 2 बदले में क्या मिलने वाला है? 15% डिबेंचर्स. 12% डिबेंचर्स कैंसिल होके 15% डिबेंचर्स मिलने वाला है. हाउ डू आई नो इट इज गिवन 15% डिबेंचर? सेकेंड ऑप्शन क्या है? 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार. सो व्हाट वी विल डू? ऑप्शन 2 यहाँ पे भी 1500 लोग, 1500 ने ये ऑप्शन लिया, 1500 डिबेंचर्स ने ये ऑप्शन लिया. इट इज ऑफ 100. सो कितना हो जाएगा? 1,50,000 और डिवाइड बाय 100, बिकॉज एक डिबेंचर 100 का है. तो कितना हो जाएगा? 1500 15% debentures of ₹100 issued at par. 100 रुपीज का डिबेंचर 100 रुपीज में मिला, क्योंकि यहाँ पे है 100 रुपीज ईच एट पार. सो हियर 1,50,000 के बदले में ये कैसे मिला? 1,50,000 1500 इंटू 100. पहले का डिबेंचर्स भी उतने का था. अब जो न्यू डिबेंचर्स है वो भी 1500 इंटू 100 है. सी हियर 1500 डिबेंचर्स ऑफ 100. सो दिस इज ऑल्सो 1,50,000. पार है तो प्रीमियम कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स opted for option 2. This is also done. इसके बाद लास्ट ऑप्शन है. लास्ट ऑप्शन क्या है? कैश का है. लास्ट ऑप्शन इज फॉर कैश. सो लास्ट ऑप्शन करते अभी फोर्थ एंट्री. लास्ट ऑप्शन. सो लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन इज कैश. कितने लोगों ने कैश लिया एंड कितने लोगों ने लिया? होल्डर्स ऑफ 2000 डिबेंचर्स. सो अगेन डिबेंचर होल्डर्स कम होगा. क्रेडिट में है, कम होगा तो डेबिट में आ जाएगा. और बदले में क्या देने वाले हैं? बदले में देने वाले हैं कैश. बदले में दे रहे कैश. सो कितने लोगों ने ऑप्शन लिया? 2000 इंटू 100. ये लोग को मिल रहा है कैश.
कैश मिल रहा है उसमें नंबर्स निकाल नहीं सकते. लाइक इन डिबेंचर्स वी कैन फाइंड आउट द नंबर. In preference shareholder we can find out the number with per value, per face value. But कैश में हम नंबर्स नहीं निकाल सकते. लेकिन एक चीज हमें करना पड़ता है. यहाँ पे देखो क्या बोला है. रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी डिसाइडेड टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय लॉ. Use the minimum amount of profits required by law. So how much is the minimum amount of profit required by law? So हम लोग का as per law, as per the Companies Act, minimum amount of profit, minimum profit is equal to 25% of the face value of debentures, face value of debentures redeemed at cash. तो यहाँ पे देखना मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए. यहाँ पे बोला है ना एज पर लॉ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना होगा वो यूज करो. तो एज पर लॉ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या है. व्हाट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इट इज 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड एट कैश. तो कितना अमाउंट कैश में रिडीम हुआ है. 2 lakh is the total amount redeemed at cash. Total amount redeemed at cash is 2000. फेस वैल्यू. यहाँ पे हमने कोई प्रीमियम नहीं दिया. हमने 100 रुपया ही दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया. तो हमें फेस वैल्यू ही है. डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है. तो 2000 into 100 is फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स redeemed at cash is 2 lakh. Face value of debentures redeemed at cash is 2 lakh. 2000 into 100 it is 2 lakh. उसका 25%, उसका 25% कितना होता है रुपीस. उसका 25% होता है 50,000. यस यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा मैंने. being number of debentures opted for option 3, या तो ऐसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं. फिर अभी हमें कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है. प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना है 50,000. सो उसके लिए क्या करेंगे. प्रॉफिट किधर होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू किधर ट्रांसफर करना है. फाइनली हम DRR बनाओ या सिंकिंग फंड क्रिएट करो. हम उसका लास्ट में बैलेंस किधर ट्रांसफर करते हैं. हम जब भी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं या हम सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में. बट फाइनली उसका जो भी बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते DRR या सिंकिंग फंड में, और लास्ट में वो सिंकिंग फंड या DRR का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते. तो हम ये फाइनल एक पहला और लास्ट कंबाइन करके कर रहे हैं. क्योंकि वैसे भी पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट से सिंकिंग फंड में जाता है और सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व में जाते हैं. सिंकिंग फंड तो ऑटोमेटिकली सिंकिंग फंड DRR कैंसिल हो जाते हैं. देखो पहले ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू DRR और व्हाट यू से सिंकिंग फंड. फिर जब पूरा रिडेम्पशन होने के बाद सिंकिंग फंड से जनरल रिजर्व या DRR से जनरल रिजर्व. तो अभी हमने एक फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन कर दिया. फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री को कंबाइन कर दिया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल रिजर्व. कितना मिनिमम प्रॉफिट यूज करना है. मिनिमम प्रॉफिट इज 50,000. ये कैसे मिला.
It is there in the working note. So इसको क्या बोलेंगे? Being debentures redeemed out of minimum profits. Out of minimum profits. With this was the last entry. With this sum is done.